Hello students, today I am discuss of the good morning beta, very good morning. Today I am discuss chemical bonding and molecular structure of the second topic covalent bond. Okay, because the ionic bond are completed of the previous lecture, so now starts of the covalent bond. Second covalent covalent bond. Okay. According to Lewis and Langmuir concepts, the combined by sharing of electron, okay, combined by sharing, sharing of, okay, sharing इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होती है शेयरिंग होती है combined by sharing of electron the octet rule because the Lewis structure are the depends upon the dotted structure. So Langmuir and Lewis are concepts of the combined by the sharing of electrons of octet. The element of the same or are different element. Same or different elements is called covalent bond. Covalent bond. Okay. The bond formed by the mutual sharing of electron between the combined atom of the same or different elements is called covalent bond. Okay, students. The sharing of electron, for example, of covalent bond. Same element, for example, same element like H2, Cl2, N2, O2, etc. These are same elements combined atoms. Okay, mutual sharing and different elements like HCl. Okay, NaCl, C2H5, sorry, C2H4, C2H6 and C2H2. For the combination of the sharing of electron, if H2 molecules, one hydrogen are represents of the one electron and second hydrogen are represented of the one electron, the mutual sharing of the one electron. Okay, students, single bond of H2. one electron sharing. सेकेंड में कोई भी ले सकते हैं आप ऑक्सीजन ही ले लीजिए O2 मॉलिक्यूल्स तो O2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द आउटर मोस्ट cell present in electron 6 one oxygen and second oxygen present in also two electron the mutual sharing of the two electron because the Lewis structure of the two electron are often complete are the oxygen atom. Okay, now two electrons combined by the electron ये शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाएगा आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फोर इलेक्ट्रॉन सो oxygen is here. Okay, now next nitrogen. Nitrogen molecules also contain the five outermost shell electron, so the three electron are
combines of the another nitrogen, the mutual sharing of the N2 are 3 electrons. So nitrogen also formed of the triple bond and presence of this is bond is the bonding or non-bonding electron. These electrons are bonding electron. These electrons are called non-bonding electrons. Okay, students. The same atom are combined form mutual sharing of electron between two atoms. Okay, one electron are combined single bond. Two electrons are combined double bond, and three electrons combined. If two atoms share of electron pair is 1, so it is called the single bond represented. If two atoms share two electron pair, it is called double bond. Three electron sharing, it is called triple bond. Okay. This example are same elements, but another example are the different elements like any structure of the C2H2, C2H6 या C2H5. ओके HCl जैसे जनरल NaCl भी है तो सेकंड में थर्ड ले लेता है C2H4 तो C2H4 स्ट्रक्चर कार्बन एटम टू कार्बन एटम of the Lewis bonded structure and four hydrogen 1 2 3 4 1 1 so double bonds है okay students देख one hydrogen and one hydrogen स्ट्रक्चर शो अप कर सकते हैं आप ओके 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कंबाइंड्स बॉन्ड्स ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है इसका इसका भी कंप्लीट है ये डुप्लेट है तो इस हाइड्रोजन में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है इसकी शेयरिंग भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर ये टू इलेक्ट्रॉन चाहे तो इसको हम कार्बन कार्बन के ऐसा अटैचमेंट्स भी दिखा सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है बेटा तो ये कार्बन कार्बन की 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है यहाँ से हाइड्रोजन की बात है ये भी हाइड्रोजन है आपका और ये भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ हो जाएगी हाइड्रोजन की ये ये सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड एंड वन हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ द दिस double bond single bond to one structure of the H electron 1 2 3 4 5 6 7 8 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 so after complete C2H4 structure it is called the ethene ethane the single bond present in the C2H6 so it is the one electron sharing so it is called single bond two electron sharing are double bond or three if the three electron sharing a triple bond like structure C2H2 okay ऐसा स्ट्रक्चर आपको C2H2 C2H2 तो सेम स्ट्रक्चर कार्बन 2 2 कार्बन हाइड्रोजन 1 1 हाइड्रोजन combined of the single bond 1 hydrogen so three electrons of the sharing in carbon atom okay और 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इस तरह फॉलो करना तो आप स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिएगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा C2H2 okay Lewis structure of molecules having multiple covalent bonds single double and triple one electron are called single bond and two electrons are double bond and three electrons sharing of the same are different atom is called triple bond single bond double bond and triple bond
The different structure of the covalents are Lewis dot structure. लुइस डॉट स्ट्रक्चर के डिफरेंस एटम्स को आप फॉलो करना है तो बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आपके लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं कोई भी, जैसे आपका O2 वगैरह हो गया लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो मॉलिक्यूल्स एंड लुइस रिप्रेजेंटेशन बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आप ऑलरेडी कर सकते हैं, जिसमें ऑक्टेंट रूल भी फॉलो हो सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आप डॉटेड स्ट्रक्चर इज Lewis depends upon the central atom of the carbon atoms, and chlorine carbon atom represents of the 4 electron outermost shell, and chlorine is the 7 electron presence. Okay students, now structure in below whiteboard. One carbon atom presence of the outermost shell, so 4 electron, and chlorine outermost shell present in the 7 electron. Okay, one electron sharing of the four sides, 1 2 3 4 5 6, single chlorine, double lone pair electron. Okay, one electron and outermost shell of the chlorine, and carbon this. So one electron sharing combined, one electron combined, one electron combined. तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है तो सिंपल सी बात है, कार्बन ये, यहाँ पर आपका क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन आप शो कर दिए। दिस स्ट्रक्चर ऑफ लुइस डॉट स्ट्रक्चर। इसकी लिमिटेशन भी बहुत है, एक्सपेक्टेशन भी, इसको भी बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नाउ लुइस डॉट स्ट्रक्चर। Okay students, now H2SO4 structure. H2SO4, the central atom present in the sulfur atom, and four sides are combined of the oxygen atoms, and one hydrogen and one hydrogen. Okay, now Lewis dot structure so of the bonded is the 4 electron, चाहे तो इसे आप सेंट्रल एटम से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब सल्फर एटम देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 into 2 is equal to 12 atom, not completed for the octet rule. Okay, now expanded of the central atom, expanded octet of the central atom, सेंट्रल एटम में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये एक्सपेक्टेशन आप पढ़ेंगे, इसमें देख लेंगे, हो जाएगा। ये अभी लुइस डॉट स्ट्रक्चर आप शो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रक्चर जितने भी आप शो कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू आपको यहाँ पर जितने भी अभी आगे चल के आपको फार्मूले आ जाएंगे। अभी मैं फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि H3O प्लस कैसे हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात आ गई SO4-2, अभी लुइस डॉट में ये फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज कैसे लग गया, इसको कैसे निकाला जाएगा, ये अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। बाकी स्ट्रक्चर की बात है तो देखिए सल्फर की क्या हो जाएगी, सेम टू सेम इसी प्रकार स्ट्रक्चर फॉर्म कर लीजिएगा। ये अब इसको हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं और यहाँ भी नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये पता चल जा रहा है कि SO4-2 यानी सारे ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज नहीं लगा हुआ है, केवल 2 ऑक्सीजन पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे कर देते हैं ये, तो इससे आपको कैसे पता चलेगा कहां पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मल चार्ज होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं पर ऑलरेडी क्या लग जाता है, निगेटिव पार्ट लग जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर बी है, ये बी है और ये बी है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेगा, ऐड कर लेगा, तो ऐड कर लेगा तो ये पॉजिटिव वाला बाहर हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा। अभी कैसे आया देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ऑलरेडी, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ले लिया। जैसे ले लिया, इसका हाइड्रोजन चला गया बाहर और यहाँ पर चार्ज आ गया निगेटिव, तो फर्स्ट 1 निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये भी हाइड्रोजन इसी तरह चला गया, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया। इसलिए SO4 को यहाँ पर -2 लिख देते हैं, ठीक है। ये Na2 सोडियम सल्फेट भी हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, कोई भी स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल चार्ज यहाँ पर लग जाते हैं। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रक्चर आप बॉन्ड्स बना सकते हैं, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहाँ से निगेटिव होगा, कहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोसेटिस नाइट्रिक एसिड में है, पॉजिटिव लग जाता है। तो बहुत कंपोनेंट्स है, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का भी सेम स्ट्रक्चर इसी तरह फॉर्म करेगा।
फॉर्मल चार्ज हमें पता चल जाएगा। कार्बोनेट CO3-2, तो कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास ऑक्सीजन कितना है बेटा? अब ये 2 जो वहां पर लगा है चार्ज, ये किस में लगेगा? क्या सभी ऑक्सीजन में लगेगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड में लगेगा? इसके लिए अभी हम फॉर्मल चार्ज देखते हैं। जैसे अब ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जब बना देंगे, 3 ऑक्सीजन है। अब ये देखिए 3 ऑक्सीजन, ये अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड पर क्या है? 1 निगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन को वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज जो है -1 का है सेकंड में एंड थर्ड में। इसका आइसोमर बेटा बनता है, इसलिए यहाँ पर ये किसी में भी हो सकता है, ऊपर भी यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो तो इसके आइसोमर भी फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में। इस प्रकार अभी हम फॉर्मल चार्ज देख लेंगे। अभी केवल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको हम बता रहे हैं कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सारे कंपोनेंट्स एक साथ हो जाते हैं, बट बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लिमिटेशन पाई जाती है, जैसे लिथियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है ना, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और ना ही कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ इसकी लिमिटेशन है, डीमेरिट भी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, तो वो आगे हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कैसे हमको पता चल जाता है बेटा कि किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, है ना? जैसे सिंपल सी बात, अभी हमने 2 स्ट्रक्चर आपको बताए। NO3 माइनस है तो कैसे NO3 माइनस में -1 लग गया। जनरली आप जब आयंस पढ़े होंगे 9th 10th में, तो उसमें एक थोड़ा सा टॉपिक बताया गया था, तो उसके थ्रू तो हम जनरली केवल जान जाते हैं कि मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक कैटायन, मोनो एटॉमिक एनायन। ओके, बट यहाँ पर आपको फॉर्मल चार्ज के थ्रू आपको बताना है कि फॉर्मल चार्ज से हमको ये पता चल जाएगा कि किस ऑक्सीजन पर -1 लगा हुआ है, कोई भी। ठीक है, एक टॉपिक है आपका फॉर्मल चार्ज, बहुत आता है बेटा ये फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इसका फार्मूला मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद एटम ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। ओके, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज आर Fc is equal to valence electron minus lone pair electron, non bonded electron and bonded electron minus 1/2 s. Okay, minus 1/2 s, the total number of valence electron. ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर नंबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जो भी ये हो जाएगा टोटल नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा। एल यहाँ पर जो आपका है टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग, ये एनबी के लिए है बेटा, हम ऐसे फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है किसके लिए? नॉन बॉन्डेड, जो भी नॉन बॉन्डेड कंडीशन है उसके लिए है। और टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग यहाँ पर किसके लिए? बॉन्डिंग, या इसी को बोलते हैं शेयरिंग। ठीक है, एस फॉर है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल नेगेटिव नॉन बॉन्डिंग ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 शेयरिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके थ्रू हम फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं, वो चाहे ट्राई वैलेंट मॉलिक्यूल हो चाहे डाई वैलेंट मॉलिक्यूल्स हो, पॉजिटिव लगेगा कि नहीं लगेगा इससे पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक एटम्स का आप निकाल लेंगे तो ये एक आपको नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में कोई भी तमाम हम आपको करवा दे रहे हैं, आप कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ओजोन, अब देखिए ओजोन है, अब ओजोन में आपको देखना है कि यहाँ पर माइनस प्लस किसी ऑक्सीजन में लग रहा है, फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। अब इसका हम जनरली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे डबल बॉन्ड एक में ऑक्सीजन में लग जाएगा, एक में सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा। ठीक है, ये आपका लगा रहेगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम सबसे पहले किसी को मान सकते हैं, ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये 3 है। बेटा इसको किसी को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम केवल इसको 1 माने इसको 2 माने, आप कहीं से भी स्ट्रक्चर, इसका यहाँ जो डबल बॉन्ड लगा है इधर भी लगा सकते हो आप, तो दोनों का क्योंकि वो आइसोमर फॉर्म हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी लगा लीजिए। ठीक है, द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मार्क 1,
तो हम सबसे पहले मार्क 1 का निकाल लेते हैं। अब यही फार्मूला लगा देंगे। जब मार्क 1 का आप निकालोगे, देखिए टोटल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितना होता है, 6। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा, तो 2 6 होता है, तो इसका लास्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले का हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है बेटा 6। ओके, 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जनरल सी बात है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है जिसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड कंडीशन में होंगे। ये लिखा है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डेड कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, फिर माइनस है 1/2। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए कितना है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके लिए केवल देखना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास नॉन बॉन्डेड कितना है, यहाँ पर कितना है, 6 है, तो इनटू ये 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फिर -1/2 टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको निकाल के आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये टोटल नंबर कितना आ जाएगा, +2 4 हो गया, काट देंगे, ये 3 हो जाएगा, 4 - 3 इज इक्वल टू +1 आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1, +1, तो यानी प्लस, ये फर्स्ट ऑक्सीजन में जो स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, अभी हम देखेंगे इसका +1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले का निकालते हैं, तो सेकंड वाले का जब फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड ऑक्सीजन, टोटल नंबर आप सबका सेम होगा क्योंकि ऑक्सीजन सेम एटम है, तो 6 ही आ जाएगा, माइनस, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए कि जो आपका क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड 1 2 3 4, तो केवल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे, नॉन बॉन्डेड, क्योंकि ऑक्टेट फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हो जाएगा, -1/2। अब ये क्या बोलता है, नॉन बॉन्डेड, ठीक है, सॉरी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 6 - 4, ये नॉन बॉन्ड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाए, और जो बॉन्ड बनाए 1 2 3 4 है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप टोटल निकाल लोगे 2 आ जाएगा, और ठीक है, 6 - 4 कर देंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इसका मतलब इसके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला बेटा निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज थर्ड वाला निकालेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके शो होते रहेंगे लुईस स्ट्रक्चर डॉट में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो हो गए। अब देखिए फार्मूला में रखेंगे, टोटल नंबर तो ऑक्सीजन में कितना होगा, 6 ही होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 वो सब में सेम रहेगा। ठीक है, 6 है। अब क्या बोल रहा है, नॉन, ये टोटल नंबर हो गया, अब नॉन बॉन्डेड, अब इसमें देखिए नॉन बॉन्डेड कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, 1/2, अब जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए इसे, ठीक है, आप कैंसिल कर दीजिए, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, 3 में माइनस हो जाएगा। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं फॉर्मल चार्ज के थ्रू, तो ओजोन का स्ट्रक्चर जो बेटा आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 3 ऑक्सीजन है, ये 1 2 3, तो फर्स्ट वाले में हमने देखा था क्या आ गया था, +1, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या हो जाता है, +1। सेकेंड वाले में 0 आया था, तो 0 आपको करने की जरूरत नहीं है, और थर्ड वाले में क्या आया था, माइनस आया था, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 6 थे, देखिए इसमें कितना है, 2 है, और इसमें कितना है, 4 है। तो ये फॉर्मल चार्ज के थ्रू स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि एक में पॉजिटिव आएगा और एक में निगेटिव आएगा।
कोई जरूरी नहीं है कि आप हम निकालें और फॉर्मल चार्ज में प्लस माइनस आ ही जाए। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स है, बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फॉस्जीन है, फॉस्जीन फॉस्जीन COCl2। अब इसमें निकाल के देख लेते हैं फॉस्जीन। ठीक है, टॉक्सिक गैस है यहाँ पर। ठीक है, फॉस्जीन पॉइजनस गैस है। अब COCl2, अब इसका स्ट्रक्चर हम पहले फॉर्म कर लेंगे, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो C कार्बन क्या है आपका, सेंट्रल एटम पर है, और COCl2 है, तो आप डबल बॉन्ड O और Cl2 ये। ठीक है, सबकी अगर वैलेंसी कंप्लीट करना हो तो देखिए 1 2 है, तो 1 2 ये 4, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 6 7 ये भी कंप्लीट आपका। ओके, इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर फार्मूला आपको अगर बिल्कुल पता है तो ऑलरेडी FC आप निकाल लेंगे, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी निकालना, ये कार्बन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, तो आप किसी का भी इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए फार्मूला आपको मालूम है, V माइनस L माइनस 1/2S। दिस इज टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। L लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर LNB लिख दिया करिए तो आपको आ जाएगा, और यहाँ पर बॉन्डिंग कर दिया करिए। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर इन दोनों की निकालेंगे तो इसमें बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम कार्बन का निकाल लें, फिर ऑक्सीजन का। अब क्लोरीन 2 है तो इसको फर्स्ट सेकंड कर सकते हो। ठीक है, अब कार्बन का आप निकाल लीजिए। अगर कार्बन का सबसे पहले निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, कुछ नहीं, वैलेंस सेल में कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस सेल में कार्बन 6 होता है। कार्बन 6 तो 2 4 तो 4 होगा, कार्बन के लास्ट 4 है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई है नॉन बॉन्डिंग में जो बॉन्ड ना बना रहा हो, नहीं है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, कार्बन के ऊपर बॉन्डिंग में क्या है, कहीं है, नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डेड नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। 1/2 है। बॉन्डेड में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये है ना, 8 आ जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब बेटा इसका निकालते हैं। अब जब आप करने लगोगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए यही में अगर आप हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो ऑक्सीजन के में बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो ये ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कौन से ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए नॉन बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कर देंगे। 1/2 कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का भी आपका निकल आएगा। ओके, एकदम क्लियर है ना। देख लेंगे तो ऑक्सीजन का भी निकल आएगा। तो बस सिंपल बात है, 2 हो गया 4, तो ये हो जाएगा 2, 6 में से 2 इज इक्वल टू 0, इसमें का भी 0 आ जाएगा। अगर क्लोरीन की बात करते हैं, देखिए क्लोरीन दोनों में सेम है, तो एक का निकाल लेंगे, दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है और उसके पास बॉन्डिंग भी सेम है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितनी होती है, आपको सबको मालूम होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितनी होगी, 7, है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, 7। और यहाँ पर आप देखिए नॉन बॉन्डेड कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नॉन बॉन्डेड। और बेटा जो बॉन्ड बना रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, ध्यान से देख लीजिए कितने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लोरीन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 प्लस कर देंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1 है तो निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी सब का 0 आ रहा है। ठीक है, सभी का 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। अभी हमने सल्फेट का आपको बताया बेटा, तो सल्फेट का भी आप बना सकते हैं कि कैसे वहां पर 4 लग जाता है। सल्फेट है SO4, अब ये -2 है, हमको मालूम नहीं किस ऑक्सीजन पर लगा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर उसी तरह लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। अब आउटर मोस्ट सेल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप शो कर देंगे।
1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4। नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले में बेटा, सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा उसमें 8 कंप्लीट 6 होगा बेटा, और इसमें 4 होगा, इसमें भी 4 होगा। ठीक है। अब आप सल्फर का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। ये दोनों ऑक्सीजन सेम आएंगे क्योंकि डबल डबल बॉन्ड से सेम है। ये भी ऑक्सीजन का सेम आए तो एक आप निकालेंगे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, किसी का भी आप निकाल लीजिए। सल्फर का भी निकाल, तो आप देखिएगा इस ऑक्सीजन का मैं निकाल रहा हूँ, ऑक्सीजन फर्स्ट का। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे। अब देखिए लर्न कर लिए आपने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में? 6। ओके। और अब आपको नॉन बॉन्डिंग कंडीशन देखना है, तो नॉन बॉन्डिंग में आप देखिए कितना हो रहा है, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1/2 बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? इंटू 2। ओके, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। समझ में आ गया? बस इसको आप कंक्लूड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, -1 इसका मतलब इसमें -1 है तो इसमें भी -1 आएगा क्योंकि सेम कंडीशन है। ठीक है ना? अब हम इस ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन मान लेते हैं सेकंड है, तो सेकंड ऑक्सीजन का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज। बेटा क्या है, आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 6 होते हैं। नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में आप देखिए सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। -1/2 इंटू बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी सेम है तो इसमें भी नहीं लगेगा। अब यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है, इस जगहों पर नहीं लगता है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आप अच्छे से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपको लर्न रखना है कि फॉर्मल चार्ज, देखिए आप अपने से भी इसको बना सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम उसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एनबी में। कभी कभी कई फार्मूले में ऐसे भी लिख देते, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एनबी हो गया, जिसको हम बी से शो करते हैं, बुकों में दिया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 बी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपने लर्न रखने के लिए ये भी फार्मूला आप कर सकते हो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज है ये बहुत सिंपल, आप देख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसी का भी। अब एक दो पॉइंट है बेटा जो ऑक्टेट रूल में फॉलो अप नहीं करते हैं, उसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेशन है या एक्सपेक्टेशन है ऑफ ऑक्टेट रूल, ये लिमिटेशन है आपका। ठीक है, ऑक्टेट रूल में क्या लिमिटेशन है, कैसे कई जगह पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? ठीक है, तो 1s2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको डुप्लेट कहते हैं। नंबर 2 में हो जाए इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑफ सेंट्रल एटम। बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में ऑक्टेट रूल का फॉलो ही नहीं करेगा, जैसे BeH2 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, देखिए उसमें नहीं करेगा। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड इसमें भी आपका नहीं करेगा। बोरान से जेट रिलेटेड है, BF3 बोरान टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप तो BeH2 बेरिलियम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए बेरिलियम, बेरिलियम है तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना आ गया? 1 2 3 4, तो 4 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी फॉलो नहीं किया। लिथियम का आप देख लेंगे, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पर क्लोरीन रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका कहाँ पर कंप्लीट हुआ है ना, एक लिथियम का कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह BF3 में देख लेते हैं, BF3 यहाँ पर BF BF BF। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6,
ओनली 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ द प्रेजेंस इन द सेंट्रल एटम, ये तो 7 रहेगा तो 7 शो हो जाएगा, इसमें की बात नहीं है। तो फ्लोरीन तो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है बट यहाँ पर बोरान फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सेकंड आपका इसका लिमिटेशन हो जाता है। नंबर थर्ड में आपका आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड ऑक्टेट रूल ऑफ द सेंट्रल एटम। तो यानी बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन से मोर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको H2SO4 दिखाया था, तो 8 इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है 1 2 3 और ऊपर नीचे लगा देते, देखिए एफ एफ ये हो गया, तो यानी ध्यान से देखिए अगर, तो फ्लो ये फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 अपने हैं और 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये 10 इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर एक होता है SF6, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड में देखेंगे आप 6 फ्लोरीन होता है, 1 2 3 4 5 6, टाइम कम है केवल 3 मिनट, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 यानी 12 है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, यानी ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये भी आपका लिमिटेशन एक्सपेक्टेशन है। अभी H2SO4 का आप स्ट्रक्चर देखे ही थे, आइए अब 7 का देखते हैं, ठीक है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन और आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 सेकंड, तो यहाँ पर जो है 7 फ्लोरीन के साथ ये करता है, तो 7 कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कितना, ये सब में फ्लोरीन होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है सेंट्रल एटम में, 12 इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है जो ऑक्टेट रूल में फॉलो नहीं करता, एक्सेप्टेड ऑक्टेट रूल ऑफ द सेंट्रल एटम, ओके। नाउ इवन एंड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है नंबर 4, इसका लिमिटेशन है इवन एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे NO हो गया, तो इवन एंड ऑड में नंबर 4 में इवन एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रिक एसिड NO, ठीक है, तो आप नाइट्रिक एसिड में NO होता है केवल NO, अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करेगा, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड सर्किल लगा दिया, यहाँ पर हम कितने 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, एक का तो कंप्लीट हो गया बट नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंस इन द 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, देखिए ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है बट नाइट्रोजन कितना है 5 1 2 3 4 5, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन